Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 5th semester. Our topic is preparation of final account of companies. Today we are going to solve question number 7. Previous video, check the I button 1, 2 to 6 and below description all videos links are there. Please student also watch the introduction video thoroughly, because without introduction you cannot prepare the final account in a vertical form, because this topic is only in the vertical format, and without vertical format we can't solve the final account. So please watch the introduction video of vertical balance sheet and vertical P&L. Both separate videos are there, as well as some example is given on the balance sheet as well as P&L. Before starting the sum, please watch the introduction, then only come to the sum. So let's begin with question number 7. Following the trial balance of Nakul as on 31st March 17. Trial balance is given, adjustment is there, and note to account as usual we are going to prepare. So first of all, on debit side, 1st April 16 stock, that means your opening stock, and opening stock will appear in profit and loss account, where we have to show the change in inventories. Because opening stock compare with the closing stock, 31st March 17 is your closing stock, so we have to show the difference in P&L statement. So this is called as change in inventories, and this is the opening balance we have to compare. Then purchase, again it is a P&L entry under the heading of expense. You have to give the heading purchase. Furniture and fitting, it is your balance sheet entry, and it will appear in non-current assets, under that fixed asset, and under that tangible assets. Rent, other expense, P&L entry. Plant and machinery, again tangible assets. Bill receivable, under the head of assets, current assets, and under the current asset it will appear in trade receivable. Wages and salary, it is a P&L entry, and it is a employee benefit expense under the heading of expense. The subheading is employee benefit. So below that we have to write wages as well as salary. So both will appear in employee benefit expense. Sundry expense, again P&L entry, other expense. Dividend paid, this is for the previous year, and if dividend is paid or interim dividend is paid, it is an appropriation, and appropriation we have to deduct from our P&L entry. This surplus account is nothing but P&L entry, net profit, all that. So this is considered as appropriation, and we have to deduct less from reserve and surplus, and under the reserve and surplus it is P&L entry, that is surplus account. So children, please remember this thing, interim dividend or dividend paid. It should not be proposed. Proposed, no need to pass any entry. Data, again current asset, trade receivable, cash and cash equivalent, patent and trademark. Under the heading of fixed asset, it is your intangible assets. Tangible asset as well as intangible asset, both will appear in the heading of fixed assets. Then come to credit side, sales is your revenue. In P&L there are only two sides, debit and credit. Credit means income. Under the credit side only two entries there, revenue and other income, and remaining will appear on the expense heading. So sales is your revenue, discount is your other income, surplus, this is your reserve and surplus heading. This is nothing but a P&L entry, and this is a opening balance. 31st March 16, that means the previous year closing, the current year opening balance. And we are going to prepare P&L for the current year, and we will get the closing balance of the current year. So 15,000 opening balance, and we are going to find out the closing balance, though both the entries should be added. And from this we have to deduct this 9,000 also. So remember this thing, this is appropriation. Share capital, balance sheet entry, share capital under the heading of shareholder fund. Reserve, general reserve, again is a reserve and surplus. Bills payable, it is a liability, current liability. Under current liability, again it is heading a trade payable. Purchase return we have to simply deduct with the purchase, minus करना है आपको ये. Then creditor, again trade payable, current liability heading.
So this way we had tick mark all the entries from the trial balance. Now come to adjustment. In adjustment, they are asking to prepare P&L statement as well as the balance sheet. So first adjustment, simply it is the inventory closing stock. We have to pass the two effect. First effect will appear in current asset heading, and second effect will appear in P&L by comparing opening and closing. Second adjustment says that make a provision for income tax 50%. It is the second last entry in the profit and loss. So whatever the profit before tax, from that 50% is the income tax. Then we will get the net profit after tax. So again it has a two effect. First we have to do it from P&L as a tax. Then second entry in balance sheet, short term provision under the heading of current liability. Depreciation, plant and machinery, furniture, patent. That means we have to deduct from furniture, plant and machinery as well as patent. Just put a tick mark. Then 31st March 17, outstanding rent amounted to 800 while outstanding salary is 900. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो आपको करना है अदर करंट लायबिलिटी में फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ऐड टू अदर एक्सपेंस. दैट मीन्स जो आपका रेंट है इसके अंदर आपको ऐड करना. टिक मार्क कर लेते हैं बिकॉज इन P&L वी हैव टू शो एज एन ऐड. एंड सेकेंड इफेक्ट इट विल अपीयर इन अदर करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी. सेम वे सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है मगर सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, तो इसको भी फर्स्ट इफेक्ट विल अपीयर इन अदर करंट लायबिलिटी. देन सेकेंड इफेक्ट आपको इस सैलरी में जाके ऐड करना है. तो इफेक्ट प्लीज बच्चों याद रखें. द नेक्स्ट इफेक्ट एडजस्टमेंट, द डायरेक्टर प्रपोज टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर कर रहे हैं 1416, यानी जनरल रिजर्व में पैसा आएगा. कहां से आएगा? आपका नेट प्रॉफिट से पैसा आएगा. तो ये इफेक्ट दोनों ही रिजर्व एंड सरप्लस में होगा. जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे और सरप्लस में यानी P&L में लेस करेंगे. दो इफेक्ट है इसके. सो फर्स्ट इफेक्ट P&L में आपको लेस करना है और जनरल रिजर्व में ऐड करना है. तो दोनों टिक मार्क कर लेते हैं. अब बच्चों जनरल रिजर्व तो ठीक है, ये आपको एक इफेक्ट ऐड है, मगर ये जो सरप्लस P&L है इसमें आपकी तीन एंट्री आ गई. एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो ऐड करेंगे, एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे, एज वेल एज ये भी एक तरह का एप्रोप्रिएशन है 1416, तो ये भी आपको माइनस करना है. तो कैलकुलेशन याद रखिए P&L का. देन देयर वाज अ बैड डेट अमाउंटिंग टू बी 510, यानी न्यू बैड डेट है. डेटर से क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं और अदर एक्सपेंस में आपका सेकेंड इफेक्ट जाएगा. तो आपका डेटर है यहाँ पे 27,500, इससे आपको माइनस करना है और सेकेंड इफेक्ट अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस जो है P&L में हम बनाएंगे वहां पे लेके जाएंगे. Then provide manager remuneration 10% of net profit before tax. ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी आपको P&L को पूरी एडजस्टमेंट पूरी एंट्री पास करनी है टैक्स छोड़ के, क्योंकि टैक्स के पहले की बात कर रहा है बिफोर टैक्स. तो आपको P&L पूरा बंद करना है. इनकम और एक्सपेंस माइनस करके जो फिगर आएगा उस फिगर का 10% निकालना है और फिर उसके बाद फिर रेम्यूनरेशन के साथ वापस से P&L को क्लोज करना है. फिर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन के साथ निकालना है, यानी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा इसका. तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला 10%, तो सिंपल वे में पूरा क्रेडिट को पूरे डेबिट से माइनस करना. फिगर आएगा उस फिगर का 10% निकालना मैनेजर रेम्यूनरेशन, और मैनेजर रेम्यूनरेशन के साथ फिर से आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, फिर से इनकम से माइनस करना है. तो आपका नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उसका फिर लेस टैक्स होगा, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा. ये सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तो इसको सब में समझते हैं. और बच्चों तो पहले हमको P&L बनाना है. P&L में नोट टू अकाउंट शुरू करेंगे. पहला है सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 340, देन अदर इनकम डिस्काउंट है 3000. तो P&L की और एंट्री तो क्रेडिट में नहीं है. अब चलते हैं डेबिट में. परचेज है, इन्वेंट्री है, परचेज लिखते हैं. पहला परचेज 245,950, इसमें आपको परचेज रिटर्न क्या करना है? माइनस करना है. तो आपका बैलेंस है 235,950. फिर परचेज के बाद चेंज इन इन्वेंट्री लेते हैं. आपका क्लोजिंग 88 और ओपनिंग है 75. तो चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग 75, क्लोजिंग 88.
सो बच्चों ओपनिंग को क्लोजिंग से माइनस करें तो नेगेटिव फिगर ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव आया 13,000। इसको याद रखें, फॉर्मूला चेंज इन इन्वेंट्री का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो नेगेटिव बड़ा है इसलिए आंसर नेगेटिव है 13,000, इसको याद रखें। फिर नेक्स्ट बनाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ पे 2 एंट्री है, मगर वेजेस पे एडजस्टमेंट नहीं है और सैलरी पे एडजस्टमेंट है, ध्यान देना इसको। तो पहला वेजेस लिखते 30,000, फिर सैलरी इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके ऊपर जो सैलरी का कैलकुलेशन 900 रुपया ऐड करेंगे, तो टोटल कम्स टू 8,400। अब ये दोनों प्लस करें 38,400। फिर नेक्स्ट पीएनएल एंट्री आएगी हमारी डिप्रीशिएशन प्लांट फर्नीचर की। तो डिप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आपका पहले प्लांट कितना बोला उसने 15%, तो 29,000 का 15% 4350। फर्नीचर है 10%, 17,000 का 10% 1700, और पेटेंट है 4,800 का 5%, तो 240 आया। तीनों प्लस करें, आपका टोटल डेप्रीशिएशन आया 6290। और फिर अब अदर एक्सपेंस लेते हैं, बहुत सारी एंट्री अदर एक्सपेंस में। तो रेंट इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है टिक मार्क किया हमने इसीलिए इनर कॉलम में लिखेंगे, और रेंट का आउटस्टैंडिंग है 800 रुपये ऐड करेंगे टोटल बाहर। रेंट के बाद आता है सन्ड्री एक्सपेंस और अदर और नहीं है। फिर ये आपका था बैड डेट, ये भी लिखेंगे बैड डेट 500 एडजस्टमेंट में से। तो आपके सारी इनकम और एक्सपेंस की सारी एंट्री हमने लिख दी हैं। और फिर लास्ट में ये भी एक अदर एक्सपेंस में आएगा मैनेजर रेम्यूनरेशन, मगर ये निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। पहले आपको क्रेडिट और डेबिट माइनस करके जो भी फिगर आएगा उस फिगर के ऊपर आपको फिर 10% निकालना है, ठीक है। तो पहला हम रफ में एक पीएनएल बना लेते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे वो रफ में पीएनएल। तो एडजस्टमेंट क्या था हमारा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मैनेजर को सैलरी रेम्यूनरेशन देना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बना रहे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन। पहले आपका जो क्रेडिट साइड है, तो आपका क्रेडिट में 2 ही एंट्री आती है, सेल्स और इनकम, यानी 3,43,000। तो आप 3,43,000 से सारे एक्सपेंस को आप माइनस करते हो, तो सारे एक्सपेंस लिख लेते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड है हमारे पास। परचेज 235,950, चेंज इन इन्वेंट्री 13,000, ये नेगेटिव है याद रखें, ब्रैकेट में लिखना आपको। एम्प्लॉय है 38,400, डिप्रीशिएशन है 6290। अदर एक्सपेंस में आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं है, तो जो है वो ले लो, तो 4,800 रेंट का, सन्ड्री एक्सपेंस का, बैड डेट का, तीनों फिगर लिया, तीनों को प्लस करेंगे तो 12,360। अब एक्सपेंस को टोटल करके बाहर करेंगे, जिसमें 13,000 माइनस करना है, ध्यान रखना। तो आपका टोटल एक्सपेंस आया बिफोर मैनेजर रेम्यूनरेशन, इसमें मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं है। यानी आप 340 से 280 माइनस करो तो आपका 63,000 है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर रेम्यूनरेशन। इस 63,000 के लिए हमने कैलकुलेशन बनाया। अब इसके ऊपर आप 10% निकाल दें तो आपको मैनेजर रेम्यूनरेशन आ गया 6,300। अब ये अदर एक्सपेंस में चले जाएगा 6,300, और इसका सेकेंड इफेक्ट भी जाएगा 6,300 का अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी, ये याद रखना आपको। एनीहाउ फिर अब आपका अदर एक्सपेंस का टोटल हो गया, तो अब ये चारों प्लस करेंगे तो आपको अदर एक्सपेंस का टोटल फिगर मिला 18,660। तो ये सब में बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आपको समझना है। नेट प्रॉफिट बिफोर बोला था, तो इसलिए हमने रफ में बना दिया ये। अब फेयर में हमारा एक्चुअल पीएनएल बनाते हैं। तो पीएनएल स्टेटमेंट 31 मार्च 17 नोट 1 सब बना हुआ है। सबसे पहले आप किसे शुरू करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 340 नोट नंबर 1। अदर इनकम भी क्रेडिट वाली एंट्री है, नोट नंबर 2 3,000। टोटल रेवेन्यू कितना है 343। एक्सपेंस शुरू करते हैं, एक्सपेंस में सारी एंट्री डालेंगे। परचेज 345,950, चेंज इन इन्वेंट्री 13,000, ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव आया था इसीलिए। एम्प्लॉय 38,400, डिप्रीशिएशन 6290, अदर एक्सपेंस 18,660। तो अब एक्सपेंस को पूरा प्लस करके बाहर करेंगे, जिसमें 13,000 आपको माइनस करना है। तो आपका
एक्चुअल टोटल एक्सपेंस है 286,300, इसको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 56,700। इसमें आपको टैक्स माइनस करना है जो कि क्वेश्चन में लिखा था, एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा था 50%, तो आप 50% निकालेंगे 56,700 का, तो इट कम्स टू 28,350। अब आंसर आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड 28,350। तो ये टैक्स का एक इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और ये करंट ईयर का प्रॉफिट है तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके इसको ऐड करना है। तो दो फिगर याद रखो बच्चों, बैलेंस शीट के लिए चाहिए। तो इस वजह से हम P&L पहले बनाते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट का नोट 2 बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलते हैं बैलेंस शीट के लिए, पहले नोट 2 शुरू करेंगे। नोट 2 हमेशा हमारा शेयर कैपिटल से शुरू होता है, 1 लाख शेयर कैपिटल है हमारा। फिर नेक्स्ट एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस, दो एंट्री है, जनरल रिजर्व एज वेल एज P&L यानी सरप्लस अकाउंट। तो जनरल रिजर्व 15,500 शुरू करेंगे। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था, आपको अप्रोप्रिएशन का 1416 ऐड करना है, ट्रांसफर जो किया था आपने। तो टोटल जनरल रिजर्व 16,916। अब सरप्लस यानी P&L एंट्री, ओपनिंग बैलेंस 15,000 ये, और अभी जो हमने निकाला था ये वाला फिगर प्रॉफिट पीरियड 28,350, ये लेके चलते हैं हम लोग, इसको ऐड करना है आपको। और फिर एप्रोप्रिएशन माइनस करना है। मैंने बताया था दो एप्रोप्रिएशन है, एक तो ये 1416 का और ये आपका डिविडेंड 9,000 का। तो दोनों ही आप माइनस करेंगे, 15,000 प्लस 28 माइनस 1416 माइनस 9,000, तो टोटल रिजर्व आ गया आपका 32,934। अब क्या बच्चों, अब रिजर्व एंड सरप्लस में और कोई है नहीं तो दोनों प्लस कर दे, तो टोटल आ गया आपका 49,850। फिर रिजर्व हो गया। अब लेते हैं करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल आता है। ट्रेड पेएबल में दो एंट्री है, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर, 7,000 17,500, टोटल 24,500। और कोई आता है हमारा लायबिलिटी साइड में, देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं अगर, क्योंकि सिंगल एंट्री है तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं। दो ऑप्शन है, सिंगल एंट्री के लिए दो ऑप्शन है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नोट 2 भी बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए नहीं बनाया, मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखूंगा। सो शॉर्ट टर्म के बाद अदर करंट लायबिलिटी, ये भी आपकी लायबिलिटी में दो एंट्री है तो आपको फिर नोट 2 बनाना पड़ेगा। दो है तो बनाओ, एक है तो ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं नोट 2 या डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं। दो है तो बनाना पड़ेगा। रेंट का 800 है, सैलरी का 900 है। एक चीज और बताई थी मैंने कि ये रेम्यूनरेशन भी आपने पेड नहीं, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी इसी के हेडिंग में आएगा 6,300। अब जाके हमारा अदर करंट लायबिलिटी पूरा हुआ तो तीनों प्लस करते हैं, आपका आंसर आया 8,000। अदर करंट लायबिलिटी में 8,000 लिखेंगे। लायबिलिटी साइड मुकम्मल हुई। एसेट साइड में पहले आपका टेंजिबल एसेट्स लिखते हैं। टेंजिबल एसेट में फर्नीचर, प्लांट और सब पे डेप्रीशिएशन है, याद रखें। प्लांट पे 29,435 माइनस के 24,650। फर्नीचर पे 10% था 17,000 का, तो 15,300। टोटल टेंजिबल एसेट्स हो गया 39,950। टेंजिबल एसेट के नीचे इंटेंजिबल एसेट लिखते हैं, इसके भी कैलकुलेशन है, 5% माइनस करना है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे 10 और उसमें 5% माइनस करें। ये वर्डिंग याद रखे बच्चों। फिक्स एसेट में टेंजिबल के लिए डेप्रीशिएशन और इंटेंजिबल के लिए एमोटाइजेशन। डेप्रीशिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते इंटेंजिबल के लिए। एनी और इंटेंजिबल का टोटल आ गया है। और क्या एसेट्स में जो डबल हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल 2 हुआ था, बिल रिसीवेबल और डेटर। और डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट था आपका 510। तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर 27,500 और इसके ऊपर माइनस करेंगे 510, तो टोटल डेटर आया 26,990 और फिर बिल रिसीवेबल 5,000 एंड योर टोटल रिसीवेबल कम्स टू 31,990। तो इस तरह से पूरा हमने नोट टू अकाउंट बनाया। याद रखना एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स का बाकी था, वो नहीं बनाया हमने, बैलेंस शीट में आपको डायरेक्ट लिखना है। और टैक्स फिगर हमने P&L से निकाला था, उसको याद रखे 28,350 था। तो ये वाला फिगर है 28,350, इसको भी हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो नोट टू अकाउंट पूरा बन गया है। तो अब चलते हैं एक्चुअल बैलेंस शीट बना लेते हैं।
तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एंट्री आती है आपका लाइबिलिटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर पहली एंट्री है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 8 1 लाख, फिर रिजर्व एंड सरप्लस 49,850, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर, बैंक लोन, ये तो सब में दिया ही नहीं था, तो डायरेक्टली बना लेते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपका सबसे पहले ट्रेड पेबल 24,500 और फिर अदर करंट लाइबिलिटी 8,000। नोट नंबर ध्यान से लिखते जाए। और एक एंट्री मैंने बोला था करंट लाइबिलिटी की जिसके लिए हमने नोट 2 नहीं बनाया, वो क्या था बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स के बारे में। तो आप अगर नोट 2 अकाउंट नहीं बना रहे तो फिर एक एंट्री है तो ब्रैकेट में आप बता दे टैक्स से। अगर नहीं बताना ब्रैकेट में तो फिर नोट 2 अकाउंट अलग से और बनाइए आप, कोई इश्यू नहीं है। दोनों ऑप्शन है सिंगल एंट्री के लिए, डबल के लिए तो बनाना है कंपलसरी। तो लाइबिलिटी पूरी मुकम्मल हुई, टोटल कर दें तो आपका टैली फिगर है 2,10,700। अब सेकेंड पार्ट एसेट्स है। एसेट्स के अंदर दो पार्ट है, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट आएगा पहले, और इसके अंदर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर दो चीज है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का टोटल है 39,950 और इनटेंजिबल का टोटल है 45,60। इसके बाद आपका आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा और इन्वेंट्रीज भी आएगा, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 1 था 88,000 का। तो इन्वेंट्रीज 88,000, देखो इसके लिए भी नोट 2 अकाउंट नहीं बनाए तो आप ब्रैकेट में बता दें क्लोजिंग स्टॉक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल 31,990 और एक एंट्री थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 46,200, वो भी लिख लेते हैं यहां पे। इसके लिए भी नोट 2 नहीं बनाया, तो नोट 2 नहीं बना तो ब्रैकेट में आप बता सकते हो क्योंकि सिंगल एंट्री है तो इश्यू नहीं है आपके लिए। और मेरे ख्याल से ऐसे सब पूरा हो गया तो इनको प्लस कर लेते हैं तो आपका टैली फिगर है 2,10,700। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल किया। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मैनेजर रेम्यूनरेशन, ये आपको कैलकुलेशन समझना है मैनेजर रेम्यूनरेशन का बच्चों। और बैलेंस शीट हमने बना ली, पीएनएल हमने बना लिया, टैली भी हो गया। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।